So in the previous class we were discussing about the symmetric as well as skew symmetric matrix. In case of symmetric matrix, we have discussed that transpose of A matrix, A transpose is becoming A, yeah, Aij equals to Aj, and in case of skew symmetric matrix, A transpose is equals to minus of A, Aij is equals to minus of Aj. In case of skew symmetric matrix, what we have observed that the diagonal elements are compulsory 0 in case of skew symmetric matrix. और मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में दोनों मैट्रिक्स बहुत क्लियर कट मेंशन है, सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक. एक और रिजल्ट की बात करते हैं दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसे भी ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होती है दैट इज क्लियरली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as a sum of what? Symmetric and skew symmetric matrix. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और एज ए रिजल्ट भी ध्यान रखा जा सकता है, रखना होगा इनफैक्ट. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखिएगा कैसे. सिमेट्रिक से मतलब हुआ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और स्क्यू सिमेट्रिक से मतलब हुआ ए ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ ए. तो लेट्स से दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है. ए को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट मैट्रिक्स ए इज a/2 plus a/2. ठीक है ना. समेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स a/2 plus a/2 दैट विल बिकम a. अभी क्या किया हमने, a/2 a transpose by 2, what we have done here, we have added as well as subtracted. ऐड करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा. हमने a transpose by 2 हमने ऐड किया, मैट्रिक्स को ऐड किया हमने, और ऐड किया तो हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. a ट्रांसपोज बाय 2 हैज बीन एडेड हियर एंड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड हियर. सो इट इज बिकमिंग a/2 प्लस a ट्रांसपोज बाय 2 प्लस a/2 माइनस ऑफ a ट्रांसपोज बाय 2. कर सकते हैं. a मैट्रिक्स इज हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ऑफ a ट्रांसपोज. ठीक है. Let's say it's a new matrix. Half of B, A plus A transpose is a new matrix. Let's say that is B, and half of A minus A transpose is C. This 1/2 times A plus A transpose is B, and 1/2 times A minus A transpose is C. क्या बताना चाह रहे हैं देखिएगा. Here B matrix is half of A plus A transpose. ठीक है. इफ आई टेक द ट्रांसपोज ऑफ बी, बी का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं, इफ आई टेक द ट्रांसपोज ऑफ दैट बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स इज व्हाट, आई हैव टेकन बी मैट्रिक्स एज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना. इसका ट्रांसपोज लिया. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड यू दैट k times A and transpose of that will be k times A transpose. K is some scalar number there. So B transpose becomes half times A plus A transpose and transpose of that. So B transpose is half of A plus A transpose and transpose of that. एक और रिजल्ट आपको ध्यान है, A plus B transpose, that is A transpose plus B transpose, that's what I am using here. So it is going to be A transpose plus A transpose and transpose of that. So B transpose is half of
A transpose, and A transpose and its transpose is becoming A. Whether I write A plus B or B plus A, those two are same. So B transpose is nothing but half times A transpose plus A is nothing but B. हमने क्या प्रूव कर दिया? B ट्रांसपोज इज कमिंग एज B, और B ट्रांसपोज अगर B के बराबर आ रहा है बात खत्म हो जाती है. B ट्रांसपोज इज कमिंग इक्वल्स टू B, दैट मीन्स B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिक्स B मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. B is a symmetric matrix. Now let's say if I take the matrix C matrix here, C matrix I have taken is half of minus A transpose, and if I again take the transpose of that matrix, C matrix का transpose अगर मैं लेता हूँ तो C transpose half of A minus A transpose and transpose of that will become half is a scalar value, A minus A transpose and transpose of that half of A transpose plus minus of A transpose and transpose of that. ठीक. C transpose is times it is A transpose, minus sign minus 1 is a scalar value which will come outside of that, and A transpose and its transpose will become A, and C matrix can be written as minus of half times A minus A transpose. If I take minus sign common out of that, ये माइनस वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये प्लस माइनस वन लिख सकता हूँ, माइनस वन मैंने कॉमन लिया, तो C ट्रांसपोज इज कमिंग एज माइनस ऑफ C, और C ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ C के बराबर आ रहा है तो C इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि इफ आई एम राइटिंग A इक्वल्स टू B प्लस C, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड B इज द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ दैट मैट्रिक्स. ये सिमेट्रिक हुआ तो A इज इक्वल्स टू B प्लस C. This B is known to be the symmetric part of that matrix. ये symmetric matrix हुआ तो symmetric part of that, और C is skew symmetric part of that. Skew symmetric part. तो क्वेश्चन होगा कि आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे के रखेगा और वो कहेगा कि फाइंड आउट इट्स सिमेट्रिक पार्ट. तो सिमेट्रिक पार्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यू आर गोइंग टू टेक हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट अगर आपको लेना है दैट विल बी हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स A मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. राइट, दैट इज द अप्रोच. क्या किया हमने एक बार देख लीजिएगा. A is a square matrix which we have taken here. I have written here A by 2 plus A by 2, A transpose by 2 मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया. Then I have taken half of A plus A transpose is B matrix and half of A minus A transpose is C matrix, right? So B matrix is nothing but half of A plus A transpose, and if I take the transpose of that B matrix को जो कंसिडर किया, and if I take the transpose, and that's I have solved here using those facts. क्या क्या facts यूज किए कि K times A and transpose of that is equals to K times A transpose. पहले देख लीजिएगा, लिखिए मत, पहले देख लीजिए. So B transpose that will be half times A plus A transpose and transpose of that,
and A plus B transpose can be written as A transpose plus B transpose. Those facts we have used here. और हमने बताया कि B transpose is coming as B, मतलब B मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब half of A plus A transpose is a symmetric one. और C मैट्रिक्स likewise मैंने C मैट्रिक्स लिया half of A minus A transpose, then I have taken the transpose of that and then further I have solved here. और मैंने यहाँ पे बता दिया कि C transpose is coming as minus of C and C is nothing but a skew symmetric matrix. So every square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. That is the approach. Now the question is, there is a square matrix of order 3 by 3 is given to you as 1 3 5 minus 2 0 6 and 2 4 minus 1. That's a square matrix. और आपसे कहा गया है यहाँ पर you have to find out the symmetric part as well as skew symmetric part. आपको यहाँ पर सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। बात तो बहुत आसान है लेकिन उसमें एरर नहीं हो, बस इतनी सी बात है। सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ऑफ दैट मैट्रिक्स है ना। सिमेट्रिक, व्हाट इज दैट सिमेट्रिक? सिमेट्रिक पार्ट इज नथिंग बट हाफ ऑफ A plus A transpose और skew symmetric part is half of A minus A transpose. ये ध्यान होना चाहिए। और इसमें एक छोटी सी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि A plus A transpose नहीं हो जाए और A minus A transpose, it is 1/2 of A plus A transpose, मतलब 1/2 से डिवाइड करना बहुत जरूरी, अदरवाइज रॉन्ग रिजल्ट होगा। वो 1/2 स्लिप हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। If I take the transpose of that matrix, transpose of that matrix is 1 3 5 minus 2 0 6 and 2 4 minus 1, that is A transpose. This is A transpose and A plus A transpose. So A plus A transpose 1 plus 1 which is 2, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, सेम ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे। 3 minus 2 which is 1 and 5 plus 2 7 minus 2 plus 3 1, 0 plus 0 that is 0, 6 plus 4 which is 10, 2 plus 5 which is 7, 4 plus 6 which is 10, symmetric के वैसे भी खैर, and minus 1, it's minus 1 which is minus 2, but it is A plus A transpose. लेकिन अगर सिमेट्रिक पार्ट आपको बताना है तो यू हैव टू टेक हाफ ऑफ A plus A transpose and which is nothing but you are going to take half of that, है ना। 1/2 से आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 1/2 7/2, 2 से डिवाइड कर दिया सारे एलिमेंट्स को, ऑल द एलिमेंट्स आर गेटिंग डिवाइडेड बाय 2, सो 1/2 7/2 हाफ एक सेकेंड थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 1 3 5 minus 2 0 6 2 4 minus 1, that is the matrix which I have written here, given to you. Taken the transpose of that 1 3 5 minus 2 0 6 2 4 minus 1. These two matrices are getting added here. Elements add किया आपने, this is 2, this is 1, 5 plus 2 7, minus 2 plus 3 which is 1 here, 0, 6 plus 4 10, fine, then 2 plus 5 7, ठीक है, बराबर, ठीक है। This is 5, this is 7/2, this is 5 and this is minus 1. सिमेट्रिक है वो तो होना ही चाहिए, 1/2 1/2 7/2 7/2 5 5. दिस इज द सिमेट्रिक पार्ट। और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, फॉर दैट आई हैव टू कैलकुलेट A माइनस A ट्रांसपोज फर्स्ट। A माइनस A ट्रांसपोज लेने वाला हूँ मैं, दोनों का डिफरेंस लूंगा और फिर 1/2 से डिवाइड कर दूंगा सारे एलिमेंट्स को। डायरेक्ट लिखें क्या? चलो डायरेक्ट लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है। हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज विच इज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट
ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट्स तो कंपलसरी जीरो ही आना है, तब तक बातें आना ही है। तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 डिवाइड बाय 2 विच इज 0, डायगोनल एलिमेंट्स 0 है ना, एंड इट इज माइनस 1 प्लस 1 दैट विल बी 0, इट इज 3 एंड माइनस ऑफ माइनस 2 5 बाय 2, चेक करते आइएगा प्लीज। 5 माइनस 2 दैट इज 3 बाय 2, 6 माइनस 4 2 बाय 2 1, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 बाय 2, दिस इज 2 माइनस 5 विच इज माइनस ऑफ 3 एंड माइनस 3 बाय 2, 4 minus 6 minus 2 divide by 2 minus 2, that is the skew symmetric part. Diagonal elements are compulsory 0 होना ही है, वो तो aij equals to aji, वो तो हो गई, इसे वेरीफाई होना ही है। Here it is going to be aij equals to aji, but the only point is कहीं ये 1/2 स्लिप नहीं हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में सब रहेंगे, सारे ऑप्शंस जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं वो सारे मौजूद रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा केयर करना होगी। बात तो बड़ी साधारण सी है, सिमेट्रिक इज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, बिल्कुल पूछे गए। नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ओनली, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, if A and B are symmetric matrices of same order, then show that AB is symmetric if and only if A and B commutes. A and B are symmetric matrices of same order. सीधा सा मतलब है A transpose is equals to A and B transpose is equals to B. A and B are given as a symmetric matrix, तो A transpose A के बराबर है और B transpose B के बराबर है। आपको कहा है कि ये प्रूव करना है आपको कि ए बी सिमेट्रिक, और ए बी सिमेट्रिक होगा कब, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट्स। ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड डी कम्यूट्स। जहां तक कम्यूटेटिव लॉ की बात है तो कम्यूट का मतलब हुआ कि सीधी सी बात है ए बी इज इक्वल्स टू बी है। नाउ ए बी इज सिमेट्रिक, दोनों बातें दोनों तरीके से कर लेंगे हम। अगर ए बी सिमेट्रिक है, इफ आई टेक लाइक ए बी इज सिमेट्रिक, कब, जबकि ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे या ए बी इक्वल्स टू बी हो, तो ए बी सिमेट्रिक हो तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, भाई मुझे क्या प्रूव करना है, या तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अभी मैं देखता हूं ए बी ट्रांसपोज को कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी ट्रांसपोज इज नथिंग बट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंफर्म करेगा। ए बी ट्रांसपोज अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो दैट ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दैट इज द प्रॉपर्टी दोज वी हैव डिस्कस्ड फॉर ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, so it is what B transpose A transpose, तो B transpose is equals to B symmetric है, और A transpose is equals to A, it is symmetric, so AB transpose is coming as B है। if AB equals to B है, if AB equals to B है, अगर AB और BA बराबर है तो मैं कहूंगा AB transpose is going to be equals to AB, बी ए को मैंने ए बी से रिप्लेस कर दिया। अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है तो इफ कम्यूट्स, तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी, देन ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी मैट्रिक्स जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये मैंने ये बता दिया कि ए बी अगर बी ए के बराबर है तो वो सिमेट्रिक होगा। इसी बात को दूसरे ढंग से लिख दें, इफ एंड ओनली इफ कहा गया, इफ ए बी इज सिमेट्रिक। अब मैं ये लेता हूं कि ये सिमेट्रिक अज्यूम करके दूसरी बात को प्रूव करूंगा। तो इफ ए बी इज सिमेट्रिक, अब मैं लेता हूं कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी
ए बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू ए बी के बराबर होगी। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, भाई मैंने सिमेट्रिक लिया उसको, तो ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। आगे क्या किया जा सकता है, सिमेट्रिक, अभी मैंने सिमेट्रिक लिया है, इसने कहा है कि इफ ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट्स, ए और बी कम्यूट्स करते हैं तभी होगा ऐसा। यस नहीं, बी डैश ए डैश तो हमने लिखा ही था, ए बी ट्रांसपोज दैट वी हैव रिटन एज, हाँ ठीक है ऐसा कर सकते हैं। ए बी सिमेट्रिक, देखो मैंने यहाँ पे बताया ए बी ट्रांसपोज कैलकुलेट किया, दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को बी लिखा, ए ट्रांसपोज को ए लिखा, इट इज बिकमिंग बी ए, और इफ बी ए इक्वल टू ए बी कम्यूट कर रहा है अगर वो, तो हम कहेंगे कि ठीक है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक। मैं बताना चाह रहा था कि इफ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो जरा लिखें, कोशिश तो करें, तो इट विल बिकम ए बी को लिख सकते बी ट्रांसपोज, लेकिन ए बी ट्रांसपोज, हाँ, और ये तभी बन पाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, कई अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, घुमा फिरा के बातें, क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी गिवन, तो ट्रांसपोज बन रहा है। अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी ए एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट, लिख सकता हूं। अरे ये तो समझा ही रखा है मैंने आपको, एक्स वाई और ट्रांसपोज ऑफ दैट विल बी वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। तो मैंने कहा कि भैया सिमेट्रिक है, अच्छा सिमेट्रिक है इसका मतलब है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ए को मैंने ए ट्रांसपोज से रिप्लेस किया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो बी को मैंने बी ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दिया, और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को मैं बी ए ट्रांसपोज से रिप्लेस कर सकता हूं यूजिंग दिस रिजल्ट, वो तो होता ही है। और अगर ऐसा होता है तो मैंने ये बता दिया कि भैया ए बी ट्रांसपोज जो है वो बी ए ट्रांसपोज के बराबर है, और ऐसा केवल तभी पॉसिबल है कि जब ए बी बी ए के बराबर हो। तो ए बी अगर बी ए के बराबर होगा, कम्यूट्स वाली बात है, इट कम्यूट्स, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ए बी इक्वल टू बी आ गया, और अगर ए बी इक्वल टू बी है तो हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, दोनों बातें हो गई। दैट इज अप्रोच, इफ एंड ओनली इफ कहा था, दोनों साइड से बता दिया। Now the question is, if A and B are two given square matrices such that, A and B are two given square matrices, and you have to prove that first result is B transpose A B is symmetric if A symmetric और B ट्रांसपोज A B is skew symmetric if A is skew symmetric। देखें जरा, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उसने कहा बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक, दिस मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी अ सिमेट्रिक वन प्रोवाइडेड ए इज सिमेट्रिक। देखते हैं, सो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इफ आई टेक द ट्रांसपोज ऑफ दैट। हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक तभी होगा जब ए सिमेट्रिक हो। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए बी एंड बी हैव टेकन द ट्रांसपोज ऑफ दैट, ठीक। लेट्स से ए बी को हमने एक मैट्रिक्स अभी यहाँ पे मान लिया, सी मैट्रिक्स मान लीजिए कुछ, ठीक है। इसको ऐसा लिख देता हूँ, बी ट्रांसपोज सी एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट। तो बी ट्रांसपोज सी और ट्रांसपोज ऑफ दैट कैन बी रिटन एज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ओके। तो सी इज नथिंग बट ए बी ट्रांसपोज, अच्छा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट विल बी बी,
और ए बी ट्रांसपोज कैन अगेन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू बी। एक बहुत सिंपल सी बात है कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए सिमेट्रिक, इफ ए सिमेट्रिक, अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए के बराबर होगा, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो बी ट्रांसपोज ए बी, और सीधी सी बात है बी ट्रांसपोज ए बी एन ट्रांसपोज ऑफ दैट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, और बी ट्रांसपोज ए बी एन ट्रांसपोज ऑफ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, कॉल आ गया क्या कुछ? so much busy, too busy। क्लियर हो गया? ए बी मैट्रिक्स को हमने सी मैट्रिक्स से डिनोट किया, और बी ट्रांसपोज सी एन ट्रांसपोज ऑफ दैट इज सी ट्रांसपोज एन बी ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज ऑफ दैट। ठीक है, देख लीजिए। सो बी ट्रांसपोज ए एन बी ट्रांसपोज है ना, हमें सिमेट्रिक बताना है कि इट इज सिमेट्रिक ओनली व्हेन ए इज सिमेट्रिक, तो बी ट्रांसपोज ए बी एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट। तो हमने समझाने के लिए ए बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स कंसीडर किया, प्रॉपर्टी अप्लाई की, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट विल बिकम बी। सी इज नथिंग बट ए बी एंड ए बी ट्रांसपोज विल अगेन बिकम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी, एंड इफ ए इज सिमेट्रिक then A transpose will become A, and in that case B transpose AB, और B transpose AB and transpose of that is coming as B transpose AB। इसका सीधा सा मतलब B transpose AB is symmetric। कब? जबकि A transpose A के बराबर हो। दूसरा देखें जरा। अच्छा, इसी बात को तो उसने लिखा है वापस से कि B transpose AB is skew symmetric provided if A is skew symmetric। तो ठीक है यार, यहीं पर बात कर सकते थे। Why should we write again? देखो, ये पहला केस सेम अप्रोच ना, और दूसरा इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ ए के। तो ए ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के बराबर हो गया तो इट विल बिकम बी ट्रांसपोज एंड माइनस ऑफ ए फ्रॉम दिस प्लेस। एक ही अप्रोच है, दोनों देख रहे हैं अपन, माइनस ऑफ ए इंटू बी दैट इज माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, और सीधी सी बात है कि बी ट्रांसपोज ए बी बिकम्स, या ट्रांसपोज ऑफ दैट इज माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, एंड इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। यार पता है क्वेश्चंस दो दो तीन तीन लाइन की, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट केवल पॉइंट मेरा यहाँ पर यह है कि ये क्वेश्चंस है ना बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस में ज़रूर आएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ना सिलेबस में, तो इसी ढंग से पूछेगा छोटा छोटा करके, वो बहुत ज़्यादा नहीं बनता उसमें कुछ। या फिर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पे पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पे कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, 8 10 15 20 ऐसे कुछ कुछ अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। कुछ एलिमेंट्स देगा कि यूजिंग 0 and 1, मैं बताऊँगा आपको वो भी सर, using 0 and 1 how many symmetric as well as skew symmetric matrix can you form, और इस टाइप से। ठीक है, now the question is if there is a square matrix, let's say A is a square matrix, and if it is a symmetric matrix as well as skew symmetric matrix both, square matrix is there which is symmetric as well as skew symmetric both, then that matrix is, some options are given, हम सोच सकते हैं सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। देखो, जहाँ तक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो एक बात बहुत क्लियर है यहाँ पर कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर कंपलसरी 0, तो वो सिमेट्रिक भी और एज वेल स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो कंपलसरी 0 हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन केस ऑफ सिमेट्रिक के केस में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए लिखते हैं, इसका मतलब है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, और इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए,
और यू कैन से ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। आप बहुत आसानी से यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है। इनफैक्ट इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं, अगर आप थोड़ा सा सोचें कि डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो हैं, वो तो हैं, होना ही है, सिमेट्रिक भी और इसके सिमेट्रिक भी है। और अब आपको दोनों बातें रिक्वायर्ड है कि ए जे आई के भी बराबर हो और ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई के भी बराबर हो। तो इफ यू आर टेकिंग वन एलिमेंट इज वन, तो दूसरा एलिमेंट आप ना वन ले सकते हो ना माइनस वन ले सकते हो, क्योंकि वन लोगे तो वो सिमेट्रिक होगा और माइनस वन लोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एट ए टाइम दोनों हो नहीं सकता, वो एक ही पॉसिबिलिटी होती है और वो ये होती है कि ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देयर, दैट मींस इट्स अ नल मैट्रिक्स, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अगर आपको पता लगाना है तो ये पता लगा जाएगा, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर सिमेट्रिक और ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। एंड इफ यू जस्ट एड दीज टू, तो ट्वाइस ऑफ ए आई जे, दोनों को अगर आप जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो, इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि ए आई जे विल बिकम जीरो, डायगोनल तो ऑलरेडी जीरो है ही, होना ही चाहिए। ए आई जे इज कमिंग एज जीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एंड इट इज अ नल मैट्रिक्स, बस। ठीक। नाउ द सेकंड वन, नाउ द क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, दैट मींस ए ट्रांसपोज is coming equals to A and B transpose is coming equals to B, और आपसे कहा गया है you have to prove that, आपको क्या प्रूव करना है, AB माइनस B है, AB माइनस B है, आपको प्रूव करना है is skew symmetric matrix। ए बी माइनस बी ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऐसा प्रूव करना है। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ए बी माइनस बी है, एंड इफ आई टेक द ट्रांसपोज ऑफ दैट, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तभी तो प्रूव कर पाऊंगा। अगर मैं बता देता हूँ ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो सिमेट्रिक। वही बात, अब मुझे ए बी माइनस बी ए की बात करना है तो ए बी माइनस बी एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं और बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, एंड यूजिंग द सेम फैक्ट आई कैन राइट हियर ए बी ट्रांसपोज प्लस, मैं समझाने के लिए इसको इस ढंग से लिखता हूं ताकि और क्लैरिटी रहे, माइनस ऑफ बी ए ट्रांसपोज, दैट इज अगेन समेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। और क्या है, ए बी ट्रांसपोज कैन क्लियरली बी कैन रिटर्न एज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, minus sign will come out of that, scalar value minus 1, and B8 transpose of that will be A transpose B transpose. So B transpose is B, A transpose is A, minus of A transpose is A, B transpose is B, and BA minus of AB आ रहा है, and it can again be written as minus of AB minus BA। तो हम यहां पर जरूर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दैट ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज कमिंग एज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, इट्स ए स्क्यू सिमेट्रिक। आपने जो भी डेरिवेशंस देखे हैं क्या, दो दो तीन तीन लाइन के डेरिवेशंस ही हैं, लेकिन आपको करने की अप्रोच तो समझ में आए, क्लैरिटी तो हो कि कर क्या रहे हैं हम लोग, है ना, या अप्रोच कैसे करना, आगे कैसे बढ़े। देखिए इन जनरल एक बात करें हम कि इफ देर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी जो कि एडिशन के लिए कंफर्म कर रहे हैं एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus 2ab. Here you have to find out the required condition. Required condition जबकि ये a plus b whole square becomes a square plus b square plus 2ab. क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है जिसमें a plus b whole square a square plus b square plus 2ab के बराबर हो जाए। तो अब ये मत कहिएगा सर इसमें क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, 6ठी 7वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
लेकिन हम ये ए और बी नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्राइसेस हियर. सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर विच दैट रिजल्ट होल्ड? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज कमिंग एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी. देखिएगा, a plus b whole square. If I say a square is what? A into a. So a plus b whole square अगर मुझे लिखना है, that is nothing but a plus b into a plus b. A square is nothing but a into a. So a plus b whole square is nothing but a plus b into a plus b. Fine. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते समय एक बात बहुत क्लियर है अपने को, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है. सो हमें हमेशा ऑर्डर का ध्यान रखना होगा. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, दैट्स फाइन. एसोसिएटिव लॉ बिल्कुल फॉलो करता है, यह जरूर लिखा जा सकता है, इसमें परेशानी नहीं है. एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन. Likewise, if it is like this, you will have to take care of order, because in general community law follow नहीं करता. ये ध्यान रखने वाली बात है ना. So associative law follow करेगा, that is the first one, and distributive law follow करेगा, that is the second as well as third one. Community law तो follow नहीं करता. In general A B is not equals to B है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये जरूर ध्यान रखने की बात है कि ऑर्डर आपको अपने मन मर्जी से चेंज नहीं करना है. ए टाइम्स बी प्लस सी, दैट इज ए बी प्लस ए सी. और इफ इट इज ए प्लस बी सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विद सी, देन इट इज सी विद मल्टीप्लाइड विद ए एंड सी मल्टीप्लाइड विद बी, ए सी प्लस बी सी. ओके फाइन. देखिए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इट इज ए और ए का मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी में यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. कैसे? तो आपको समझ में आना चाहिए लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू ये लिख पा रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं तो क्यों वैलिड है? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है यहां पर. तो a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सो इट इज बिकमिंग a इंटू ए प्लस a इंटू बी, b इंटू ए प्लस b इंटू बी. एज फार एज a इंटू ए इज कंसर्न, इट कैन डेफिनेटली बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस ए बी plus ba plus b into b can be written as b square. So आप डेफिनेट को देख के समझ गए होंगे कि it will become a square plus b square plus twice of ab only when ab equals to ba. अगर ab ba के बराबर हो जाएगा, if ab is equals to ba, ए बी अगर बी ए के बराबर है, या ये कहिए कि इफ ए एंड बी कम्यूट्स, उस केस में इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए. तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है. कंडीशन क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है सो दैट ये रिजल्ट होल्ड करे? इसके लिए कंडीशन ये रिक्वायर्ड है कि ए और बी कम्यूट करे, ए बी इक्वल टू बी है, तभी बात बनेगी. राइट? मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. इट इज नोन टू बी द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. आप जानते हैं ए स्क्वायर अगर आई के बराबर है तो. नाउ द क्वेश्चन इज शो दैट ए इज इनवॉल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ I plus a into I minus a is equals to null matrix. I plus a into I minus a is a null matrix. ठीक है, देख लेते हैं. So I plus a into I minus a is a null matrix. अभी आपको क्लियर हो गया. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात आप फिर से कर लेंगे. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए I is multiplied to I minus a प्लस a is multiplied to I minus of a. अभी फिलहाल मैं रिजल्ट लेके चल रहा हूं कि ओके दिस रिजल्ट इज वैलिड देयर. ओके, I into I स्क्वायर एंड दैट I स्क्वायर इज नथिंग बट यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे, I रेज़ टू पावर 2 करोगे या 3 करोगे, दैट विल बी ए यूनिट मैट्रिक्स. तो I स्क्वायर
माइनस ऑफ आई ए प्लस ए आई माइनस ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. आई स्क्वायर इज नथिंग बट आई ए. यूनिट मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट दैट सेम मैट्रिक्स ओनली. और नल मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट अ नल मैट्रिक्स देन. तो यूनिट मैट्रिक्स में आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट ए और ए आई दैट अगेन सेम ए माइनस ऑफ ए इंटू ए दैट विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. डेफिनेटली कैंसलेशन a माइनस ऑफ a विल बिकम अ नल मैट्रिक्स. सो यहां से मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू आई. तो a स्क्वायर इक्वल टू आई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा. रिवर्स मिरर में भी इसी ढंग से लेते हुए ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए बता सकते हैं कि ये सेम रिजल्ट होल्ड करेगा. वन मोर क्वेश्चन इज देयर विच इज बेस्ड ऑन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. शो दैट इफ A and B are matrices of order n by n, that means A and B are matrices of square order such that AB is equals to A, AB is equals to A and BA is equals to B. Then ये प्रूव करना है आपको A and B are idempotent. Show that if A and B are matrices of square order such that AB equals to A and BA equals to B, you have to prove that then A and B are idempotent matrix. A और B जो है idempotent है. A और B idempotent है, इसका मतलब ये आपको प्रूव करना है A बराबर है और बी स्क्वायर बी के बराबर है. दैट यू हैव टू प्रूव, है ना. आइडेम्पोटेंट है, ये प्रूव करना है अपने को. ए बी इक्वल्स टू ए गिवन है और बी ए इक्वल्स टू बी गिवन है. देखें जरा आगे क्या होता है. देखो इफ आई राइट ए बी स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, है ना. ए और बी स्क्वायर ऑर्डर के सेम ऑर्डर के हैं तो ए बी होल्ड करेगा या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कंफर्म करेगा. ए बी can be written AB into A. इसमें दिक्कत नहीं. A square is A into A, तो AB square is nothing but AB into AB. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन मैं एक एक करके सारे डिस्कस कर रहा हूँ. रीजन ये कि कई बार अप्रोच ही समझ में नहीं आती बच्चों को कि आगे प्रोसीड कैसे करें. तो यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ आपको समझ में कि हम कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं. यूजिंग एसोसिएटिव लॉ लाइक दिस. एसोसिएटिव लॉ का यूज कर लिया मैंने इस ढंग से. क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, है ना. प्रूव दैट ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट. तो ए टाइम्स बी ए इंटू बी. अब बी ए किसके बराबर दिया है तो बी ए इज गिवन एज बी. बी ए को मैंने बी से रिप्लेस कर दिया फिलहाल. देखिए आगे क्या होता है. एक और बात है कि ए बी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज. ए बी को आप कैसे लिख सकते हैं, ए बी को भी ए लिख सकते हो आप. एसोसिएटिव लॉ AB is equals to A, that is equals to लिख दिया. B अपनी जगह. यहां पर तो मैंने ये बता दिया कि AB square is coming as what? AB square is coming as AB. मतलब A और B जो है, सॉरी नॉट A and B. AB is idempotent. एक बात तो यहाँ पे प्रूव करी मैंने. ये तो हो रहा है ना. देखो क्या किया, AB square. So if I take AB square, तो AB square is nothing but AB into AB. ये दोनों रिजल्ट्स आपको गिव हैं. गिव those two are the given results, है ना. AB equals to A and BA equals to B and you have to prove that A and B are idempotent matrices. देखें जरा. अभी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ AB square is nothing but AB into AB. ठीक. एसोसिएटिव लॉ का यूज किया. इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं.
बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ले लिया और बी ए को यूजिंग दिस रिजल्ट बी ए को बी से रिप्लेस किया. नाउ इट इज अगेन ए बी को ए से रिप्लेस किया एंड इट इज अगेन बिकमिंग ए बी. तो ए बी स्क्वायर इज कमिंग एज ए बी. तो यहां से तो ये प्रूव हुआ कि ए बी इज बिकमिंग आइडेम्पोटेंट. ए बी आइडेम्पोटेंट हो रहा है. अब ए और बी को कैसे आइडेम्पोटेंट प्रूव करें, कर सकते हैं क्या? देखें जरा, क्या हम यहाँ पे बता पाएंगे या क्वेश्चन ही ए बी इज आइडेम्पोटेंट वाली बात तो नहीं है. ए स्क्वायर ए बी आइडेम्पोटेंट है और बी भी आइडेम्पोटेंट है, मतलब ए स्क्वायर और बी, ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ रही है, नॉट वैल्यू. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कमिंग एज ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कमिंग एज बी. देखें जरा, या ऐसा तभी होल्ड करेगा, करिए जरा, चेक करिए. या दैट इज द ओनली रिजल्ट विच इज रिक्वायर्ड हियर. सो हमने डिराइव किया ए बी स्क्वायर इज कमिंग एज इक्वल टू ए बी और ए बी आइडेम्पोटेंट है. लेकिन अगर बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि ए बी इज गिवन एज ए, इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज गिवन एज ए बी इज इक्वल टू ए, तो ए बी इज इक्वल टू ए, तो ए बी को फिर मैंने अगर ए से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. और ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो ए इज आइडेम्पोटेंट. ठीक बात है, बिल्कुल बोल सकते हैं हम. एंड एट द सेम टाइम अब बोले सर बी को कैसे प्रूव करोगे, आप बताओ बी को कैसे प्रूव करोगे कि बी भी एक आइडेम्पोटेंट है. आप क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बी ए स्क्वायर, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट बी ए स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी बी ए इंटू बी ए. अगेन यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ इट कैन बी रिटन एज, यार ये समझ में आना चाहिए आपको कि कर क्या रहे हो आप. ए बी इज नथिंग बट ए, बी ए इज नथिंग बट बी. और अगेन मैंने यहां पे प्रूव कर दिया, क्या कर दिया कि बी ए स्क्वायर इज कमिंग एज बी ए, मतलब बी ए भी आइडेम्पोटेंट है. या ये कहिए कि बी ए स्क्वायर इक्वल टू बी ए, तो बी ए क्या है, बी के बराबर है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी. सो बी इज आइडेम्पोटेंट. ए इज आइडेम्पोटेंट एज वेल एज बी इज आइडेम्पोटेंट. ठीक, मैंने वही कहा आपसे, क्यों अप्रोच सूझना चाहिए आपको. है तो 2-3 लाइन के सवाल, क्लिक तो करे कि यार करना क्या, हाउ टू प्रोसीड. और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी लगेगा. एक पार्ट हमने डिस्कस किया मैट्रिसेस में, दैट इज अप टू द सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देन वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. बट बिफोर ऑफ दैट वी विल हैव टू डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स. तो डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करते हैं अभी, और डिटर्मिनेंट्स को एट ए स्टेज कंप्लीट डिस्कस करेंगे. एंड अगेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स विल बी टेकिंग द मैट्रिसेस. Matrix what we have discussed, that was arrangement of elements, and that arrangement of element can be done in any manner. In any manner that means रो टू कॉलम अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, किसी भी टाइप से आप कर सकते हैं. 1/10 का हो, 10/1 का हो, 3/4 का हो, 4/3 का हो. लेकिन जब मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर का होता है, बात तो मैट्रिक्स से ही चालू होती है. जब मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर का है तो स्क्वायर ऑर्डर के मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे उस मैट्रिक्स की वैल्यू भी कहा जा सकता है. कि डिटर्मिनेंट जब हम लिख रहे हैं तो दैट डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू, है ना, वो डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू देगा. मैट्रिक्स तो इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यस ठीक है, बट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इफ आई कैलकुलेट, तो दैट डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू गिव यू द सम स्केलर वैल्यू. पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है. तो इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A is a square matrix of order 3/3, then if I say determinant अगर मैं लिख रहा हूँ, that is the determinant of A, से modulus of A नहीं read करते, that is determinant of A, it is going to give you the unique value, a single value definitely.
एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट वैल्यू ना, उस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना, हाउ टू कैलकुलेट दैट वैल्यू जो कि इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ में एसोसिएटेड है या इस मैट्रिक्स के साथ में एसोसिएटेड है ऐसा बोले आप. तो फॉर दैट हाउ टू कैलकुलेट दैट विल बी लुकिंग फॉर इट. ये जो भी डिस्कशन होगा दैट इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू स्क्वायर मैट्रिक्स. जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में, है ना. तो इट हैज टू बी, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो बिफोर डिस्कसिंग थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. लेट्स से उसको कुछ बी से डिनोट कर देता हूं मैं. लेट्स से इट इज a11 a12 a21 a22. That means B matrix is a matrix which is of order 2 by 2. B matrix एक 2 by 2 matrix है. तो डिटर्मिनेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो डिटर्मिनेंट जो कैलकुलेट किया था आप जानते हैं, ये बात ठीक है, एक बार हमें रिव्यू तो जरूर करना होगा. डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट a11 a22 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट दैट इज a12 a21. है ना, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज द सेकेंड ऑर्डर ना. डिटर्मिनेंट की जो भी बात होगी दैट इज देयर ओनली फॉर स्क्वायर, वो स्क्वायर ऑर्डर के लिए ही होगी. इफ आई टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विच इज ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर, तो ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करते हैं दैट दिस कैन बी कैलकुलेटेड by expanding any one of the rows or any one of the columns. In fact that value of that determinant remains unchanged, क्योंकि जब मैं determinant की बात कर रहा हूँ तो determinant की value होगी. तो I can take any one of the rows or I can take any one of the columns and I can solve that determinant and that value of determinant remains unchanged, unaffected, unaltered. So if I take row number 1, if I take the elements of row number 1, how you are going to write here? If you take row number 1 and its element number 1, row number 1, column number 1, A11, if you are taking A11, in that case आप क्या करते हैं, आप उस रो कॉलम को हाइड कर लेते हैं या डिलीट कर लेते हैं और जो रिमेनिंग जो बचता है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2. बट ये ध्यान में रखते हुए कि A11 the element which you are taking that must be along with the sign, that must be along with the sign, that means with minus 1 raised to power I plus j. जो आप एलिमेंट्स ले रहे हैं रो नंबर 1 के, those are 1 1 1 2 1 3, those must be with its sign that means minus 1 raised to power I plus j. Minus 1 raised to power I plus j, if I write here minus 1 raised to power I plus j, first row first column is there, first row first column is there, so I value of I is 1, value of j is 1, I is for row, j is for column. Second one minus 1 raised to power, this is 1 plus 2, A12, first row second column. Again by hiding that row and column or deleting that row and column, you are going to get a second order determinant A21, A23, A31, A33, and then again minus 1 raised to power, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं 1 plus 3 which is A13, A21, A22, A31, A32. सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपने देखा ही, हाउ टू राइट, हाउ टू सॉल्व दैट सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. दिस minus 1 raised to power 1 plus 1 is a positive value, minus 1 square is a positive value, 1 1. डायगोनल्स का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल्स का प्रोडक्ट, minus 1 raised to power I 1 plus 2 minus of 1 2, and then plus sign. That's how you are going to solve the determinant and it, जब आप इसको solve करोगे you are going to get the value, और जो भी value होगी whether it is positive, whether it is negative और zero, कुछ भी हो सकता है.
ये जो एक्सपेंशन लिखा है मैंने, दैट एक्सपेंशन आई हैव रिटन यूजिंग द रो नंबर 1, बट द पॉइंट इज इट कैन बी एक्सपेंडेड, दैट योर डिटर्मिनेंट कैन बी सॉल्व्ड बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रोज और एनी वन ऑफ द कॉलम्स। और लिखने का तरीका वैसे ही रहेगा, मतलब इफ यू आर टेकिंग द एलिमेंट्स, those take those elements along with its sign. Sign means -1 raised to power I plus j. I stands for row and j stands for column there. तो एक्चुअल में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, you'll have to take care of that. -1 raised to power I plus j, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस and again plus minus plus, any one of the row or any one of the column. When you solve that, you are going to get the same value, exactly same value. It depends. अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि यार किस रो या किस कॉलम को लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब किस रो या किस कॉलम को लेके सॉल्व करने का मतलब ये हुआ, पहले सुन लीजिएगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपको सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम में पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करके नहीं बनाएंगे। इफ इट इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं। सब्जेक्टिव एग्जाम की बात आती है, आपके बोर्ड एग्जाम की बात आती है, इन दैट केस आपको डिटर्मिनेंट इस ढंग से सॉल्व करके नहीं आना है। सीधी सी बात है, कुछ रो ऑपरेशंस होंगे, कॉलम ऑपरेशंस होंगे, और जिससे आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा मतलब उसके एलिमेंट्स में जीरोस बनाना होंगे, है ना। इनफैक्ट यू आर गोइंग टू मेक 2 zeros इन एनी वन ऑफ द रोज और एनी वन ऑफ द कॉलम। आप ट्राई करोगे कोई एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में 2 जीरो बन जाए। अगर तीनों जीरो बना लेते हैं आप, तो इन दैट केस दैट डिटर्मिनेंट इटसेल्फ विल बिकम जीरो। सीधी सी बात है कि इफ आई से रो नंबर 1 और रो नंबर 1 के एलिमेंट्स 0 0 0 हैं, रो नंबर 1 के एलिमेंट्स अगर 0 0 0 हैं, तो एक सीधी सी बात है कि 0 मल्टीप्लाइड एंड 0 मल्टीप्लाइड, तो एक साधारण सी बात है कि दैट डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, या वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। एनी वन ऑफ द रोज और एनी वन ऑफ द कॉलम्स इज हैविंग ऑल द एलिमेंट्स इज 0, देन वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज क्लियरली 0। आप कोशिश करेंगे, यू आर गोइंग टू मेक 2 zeros इन एनी वन ऑफ द रोज और एनी वन ऑफ द कॉलम्स, और जिस रो या जिस कॉलम में आप 2 जीरो बना लोगे उसके लिए आप सॉल्व करके रख दोगे। क्योंकि जब आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 जीरो है, तो यू हैव टू सॉल्व ओनली फॉर द थर्ड एलिमेंट देयर, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको इस ढंग से नहीं सॉल्व करना है, वो सीधी सी बात है, यूजिंग रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशंस यू आर गोइंग टू सॉल्व ना, ये तो छोटी छोटी सी बातें। अच्छा, एक बात ये कि जब मैंने यहाँ पे साइन वाली बात समझाई है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स होती हैं जिससे भी समझ लें हम। वन इज अबाउट द माइनर एंड सेकंड इज अबाउट द कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर, देखो ये दोनों की बात करते हैं। माइनर, अब जैसे मान लीजिए, साधारण सी बातें हैं लेकिन पता तो हो, इफ आई टेक द एलिमेंट इज A11 और माइनर ऑफ A11 का अगर मैं माइनर कैलकुलेट करता हूं, तो माइनर अगर कैलकुलेट करना है, दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ द साइन, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब नहीं आपको। इन दैट केस यू आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट, क्या करेंगे आप, उस रो उस कॉलम को हाइड कर लेंगे जिसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट है, और ये 2/2 का डिटर्मिनेंट। से माइनर ऑफ A21, तो A21 की बात करना है, तो A21 इज प्रेजेंट इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उस रो कॉलम को आपने हाइड किया। A12 A13, नो नॉट 31, A32 A33, दैट इज अबाउट द माइनर ऑफ दैट दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के माइनर्स हैं। एंड कोफैक्टर्स की जब बात की जाती है, तो कोफैक्टर्स की जब बात करनी होती है, तो कोफैक्टर्स इज टेकन, ये माइनर्स बट टेकिंग अलोंग विद साइन, है ना। साइन की बात, जैसे कोफैक्टर लिख रहे हो आप, ये सब टर्म्स हैं जो क्लियर होना चाहिए। इज -1 raised to power 1 + 1, okay, it is possible that both are same, but cofactor में you will have to take care of the sign, -1 raised to power I plus j there। सीधी सी बात है कि A11 के लिए माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होंगे।
-1 raised to power 2 plus 1, right? So whenever you are taking the minor of some elements, sign is not taken, but whenever you are taking the cofactors, it is always taken with sign. और जब भी आप डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन लिखते हैं, सुन लीजिएगा इस बात को, एनी वन ऑफ द रोज और एनी वन ऑफ द कॉलम्स, जब भी किसी डिटर्मिनेंट का आप एक्सपेंशन लिखेंगे तो यहाँ पर इफ यू टेक रो नंबर 1, तो रो नंबर 1 के एलिमेंट्स को रो नंबर 1 के जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा. यू विल हैव टू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ रो नंबर 1 विथ इट्स कोफैक्टर्स. अगर मान लीजिए आप कॉलम नंबर 1 ले रहे हैं तो कॉलम नंबर 1 ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी. बट इफ यू टेक द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम नंबर 1, इन दैट केस यू विल हैव टू टेक द कोफैक्टर्स ऑफ कॉलम नंबर 1 ओनली and you are going to get the value of that determinant. कोफैक्टर यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. जैसे इसको लिखने का, जैसे मैंने यहाँ पे जो एक्सपेंशन लिखा है A11 और A11 मल्टीप्लाइड विद इट्स कोफैक्टर. कोफैक्टर दैट मीन्स A11 प्लस A12, A12, A13, दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट. बोले सर साइन नहीं लिया आपने, प्लस माइनस नहीं, ये जो लिखा गया कैपिटल लेटर से दोज आर द कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स अगर हैं तो उसमें साइन ऑलरेडी है ना. एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड विथ इट्स कोफैक्टर, नॉट मल्टीप्लाइड विथ इट्स माइनर्स. कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. ठीक है, दैट्स हाउ आई रिटन हियर. यू कैन टेक एनी वन ऑफ द रो, यू कैन टेक, लेट्स से यू कैन टेक दिस थर्ड रो और उसका एक्सपेंशन आप लिख के देख सकते हैं. यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड होती है. थर्ड रो ले रहे हैं तो थर्ड रो के कोफैक्टर्स लगा लेंगे. कोफैक्टर्स का क्या मतलब, -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे, और जो भी एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको हाइड किया, उसको डिलीट किया, और जो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उसके लिए सॉल्व कर लिया. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, इफ आई टेक अ 3/3 डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. That determinant I am taking here, order of 3/3. Just now I have suggested you that okay, if you are taking elements of row number 1 and if you are applying the cofactors of row number 1, you are going to get the value of determinant. ठीक है ना. रो नंबर 1 के एलिमेंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर्स आपने अप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, रिजल्ट आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगा. इफ यू टेक रो नंबर 3 और रो नंबर 3 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको. रो नंबर 3 और रो नंबर 3 में रो नंबर 3 के कोफैक्टर लगाओगे तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी. राइट. इफ यू टेक कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 3 के कोफैक्टर, अगेन यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. राइट. ये सबके सब डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिजल्ट देने वाले हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब ध्यान रखिएगा आप, ये तो बहुत साधारण सी बात है कि एलिमेंट्स और उनके कोफैक्टर, वेदर एक्सपेंशन आप रो वाइज लिखें या कॉलम वाइज लिखें, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि लाइक इफ यू आर टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ रो नंबर 1, एलिमेंट्स लेते हैं आप रो नंबर 1 के, बट इफ यू अप्लाई द कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 2 और रो नंबर 3, रो नंबर 1 के एलिमेंट्स लिए आपने A11, A12, A13, रो नंबर 1 के एलिमेंट्स लिए, लेकिन कोफैक्टर्स अगर आप रो नंबर 2 के अप्लाई कर रहे हो, A21, A22 और 23,
या फिर ये कहें कि रो नंबर 1 और कोफैक्टर्स रो नंबर 3 के ये ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, likewise if I am taking the elements of column number 1, column number 1 के एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं A11, A21, A31 और कोफैक्टर भी कॉलम नंबर 1 के लगाऊंगा तो डिटर्मिनेंट आएगा, नो डाउट। लेकिन कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स और मैं कोफैक्टर अप्लाई कर रहा हूं कॉलम नंबर 2 के। कोफैक्टर क्लियर है आप लोगों को, -1⁻I+j के साथ में, दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत आगे बहुत एक रिजल्ट जो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। एलिमेंट्स ऑफ एनी वन ऑफ द रोज और एनी वन ऑफ द कॉलम्स मल्टीप्लाइड along with those cofactors of those same rows or same columns, you are going to get the value of determinant. But if you are taking elements of row number 1, 2 or 3, but if you are not applying the cofactors of the same row, but instead of that if you are applying the cofactors of some other rows, you are going to get 0, वो 0 मिलेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ध्यान रखिएगा। जहाँ तक कुछ प्रॉपर्टीज की बात होती है, जहाँ जिसके थ्रू हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करके तो सॉल्व करना नहीं है, आपको एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमने कही थी कि if any one of the rows or any one of the columns, all the elements if becomes, all the entries or all the elements if becomes 0, then value of the determinant is clearly 0। अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, सॉरी नॉट सारे एलिमेंट्स, किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम, if all the 3 elements present in that becomes 0, then value of the determinant is 0। मैट्रिक्स के केस में what we have discussed that A मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेते हैं तो you are getting ट्रांसपोज मैट्रिक्स of that, those two are not same, और अगर वो सेम हो जाते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होती है। इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स है क्या, तो बात तो वही मैट्रिक्स, जो भी एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके करस्पॉन्डिंग आप एक वैल्यू एसोसिएट कर सकते हो और वो डिटर्मिनेंट से आप बताते हो। तो इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इफ यू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है या एक मैट्रिक्स है फिलहाल ए मैट्रिक्स, और ये उसका डिटर्मिनेंट आपने लिया। इफ यू टेक द ट्रांसपोज दैट, ट्रांसपोज ऑफ दैट, ट्रांसपोज का मतलब है रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देयर, it will now become A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। A transpose, and if you take the determinant of that, ध्यान रखिएगा, you are going to get the same value as of the determinant। The point is, इसको इस ढंग से कह सकते हैं आप, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स इफ यू इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, सारे रोज एंड कॉलम, रोज कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। ए ट्रांसपोज में क्या हो रहा है, रोज कॉलम इंटरचेंज, आपके सामने लिखा है, वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज वेल एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बराबर आएगी, ठीक। एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए आप कंसेक्यूटिव रोज को इंटरचेंज करते हैं या कंसेक्यूटिव कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट जिनका आप यूज करेंगे। तो
अगर आप कंसेक्यूटिव रोज को आप इंटरचेंज करते हैं, मान लीजिए रो 1 रो 2, कंसेक्यूटिव रोज या कंसेक्यूटिव टर्म इंपॉर्टेंट है, कंसेक्यूटिव रोज या कंसेक्यूटिव कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं, इन दैट केस लाइक इफ इट इज A21 A22 A23 A11 A12 A13 A31 A32 A33, यहां पर मैंने क्या किया है, रो 1 रो 2 इंटरचेंज की है। जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, माइनस साइन वुड अपीयर देयर। कंसेक्यूटिव रोज या कंसेक्यूटिव कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन वैल्यू के साथ में आएगा। बोले सर अगर एक बार और कर दिया हमने तो इन दैट केस इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस, वो ठीक है। मान लीजिए रो नंबर 1 रो नंबर 2 का इंटरचेंज किया, माइनस साइन आया, अब रो नंबर 2 रो नंबर 3 का इंटरचेंज कर दिया तो माइनस साइन अगेन इट विल अपीयर देयर, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस। बट द ओनली पॉइंट इज कंसेक्यूटिव रोज या कंसेक्यूटिव कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं, इन दैट केस माइनस साइन इज अपीयरिंग देयर, ठीक। ये भी फैक्ट्स हैं जो कर लिखते जाएं, कई सारी प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज इफ entries in one particular row or one particular column becomes 0, then value of the determinant is 0. So we'll look for some more properties based on the determinants. In case of matrix, if you are multiplying some scalar, so that scalar is multiplied in all the entries present in that matrix. अगर किसी स्केलर का आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्केलर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इन केस ऑफ मैट्रिक्स, दैट स्केलर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड इन ऑल द एंट्रीज ऑफ दैट मैट्रिक्स। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट के केस में अगर किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर गोइंग मल्टीप्लाइंग इट बाय सम स्केलर k, दैट स्केलर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड इन एनी वन ऑफ द रोज और एनी वन ऑफ द कॉलम्स। बोले सर हम कैसे डिसाइड करेंगे? आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे, या आप ये कह सकते हो कि इफ यू टू टेक कॉमन, अगर आपको कॉमन लेना है तो एनी वन पर्टिकुलर रो और एनी वन पर्टिकुलर कॉलम, उसमें से आप कॉमन लेंगे। जैसे इफ यू आर मल्टीप्लाइंग सम स्केलर, तो मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन इन एनी वन ऑफ द रोज और एनी वन ऑफ द कॉलम्स। इट इज अप टू योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लाइक के A11 के A12 के A3, और ये सारे रिजल्ट वेरीफाई किया सकते हैं। रो नंबर 1 के एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई हुए हैं के से, या यू कैन टेक एनी वन ऑफ द कॉलम्स। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करना है यहां पर, इन दैट केस मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा के क्यूब का। आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाय के क्यूब, तभी के का मल्टीप्लिकेशन रो नंबर 1 में हुआ, के का मल्टीप्लिकेशन रो नंबर 2 में हुआ, और के का मल्टीप्लिकेशन रो नंबर 3 में हुआ, ठीक है ना। इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट डिटर्मिनेंट बाय सम स्केलर वैल्यू, देन इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद दैट के क्यूब। के से मल्टीप्लाई चाहते हो आप सारे एलिमेंट्स को, तो के क्यूब से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। एंड लाइकवाइज इफ यू वांट टू टेक कॉमन, तो यू कैन टेक कॉमन रो वाइज या कॉलम वाइज। किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से जो भी कॉमन आ रहा है आप वो कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा कॉलम वाइज या रो वाइज, एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जिसके थ्रू हम काफी सारी प्रॉपर्टीज को हम डिराइव करेंगे, दैट इज अबाउट, और ये बहुत ध्यान से देखिएगा। If column number 1 is having the elements as like this,
A1 plus alpha 1, A2 plus alpha 2, A3 plus alpha 3, these are the elements present in the column number 1. Column number 2 is B1, B2, B3 and column number 3 is C1, C2, C3. मैट्रिक्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैट्रिक्स में दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस एज वेल एज सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिसेस कर सकते थे, सेम ऑर्डर के हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे थे. ऐसा कोई कंसेप्ट डिटर्मिनेंट्स में नहीं है. ये जो भी रिजल्ट्स हैं वो वेरिफिकेशन के साथ में सॉल्व करने के बाद में आते हैं. तो डिटर्मिनेंट में दो डिटर्मिनेंट को एडिशन करने वाली बात नहीं होती. मान लीजिए अगर कॉलम 1 के एलिमेंट्स इफ इट इज रिटन लाइक A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3, दोस्तों इट कैन बी रिटन एज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी सी बातें, दैट कैन बी रिटन एज A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, B1, B2, B3 and C1, C2, C3 like this. क्या मतलब हुआ? अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं रो वाइज कॉलम वाइज जैसे भी आप सॉल्व करते हैं और इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके ऐड करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. लेकिन इसको डिटर्मिनेंट का एडिशन कहना ठीक नहीं होगा. ये डिटर्मिनेंट का एडिशन नहीं है ना. A1 कॉलम नंबर 1 है ना, कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स को देखते हुए मैंने A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3. एक बहुत साधारण सी बात है. बोले सर इसका डेरिवेशन कैसे करोगे आप? कुछ खास बात नहीं, कुछ भी खास नहीं है. कॉलम नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग आप उसका एक्सपेंशन लिख दें. सुनिएगा ध्यान से. बोले सर ये कैसे लिख दिया आपने, कुछ बात जम नहीं रही. तो जमा देते हैं. करके बता दें आपको तो बेहतर होगा. जैसे कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स, तो कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स लिखता हूं मैं और कॉलम नंबर 1 A1 प्लस अल्फा 1, यू विल बी गेटिंग द आइडिया. अरे तो बहुत आसान बात है सर. A1 प्लस अल्फा 1, इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ, समझा दिया, अलॉन्ग विथ इट्स कोफैक्टर. इट इज इन योर नॉलेज. B2, B3, C2, C3 माइनस ऑफ कॉलम नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन लिख रहा हूं और मैं समझा रहा हूं कि यार व्हाई यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट. ये रिजल्ट आ कैसे गया? A2 प्लस अल्फा 2, B1, B3, C1, C3 प्लस A3 प्लस अल्फा 3, B1, B2, C1, C2. मतलब ठीक है, अब आइडिया हमको कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर के कोफैक्टर एंड यू आर गेटिंग द डिटर्मिनेंट. फाइन, ठीक है, अच्छी बात है आइडिया. एक बहुत छोटी सी बात है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोर्ड पे देख लीजिएगा क्योंकि मैं लिखना नहीं चाहूंगा, यहीं पर बताना चाहूंगा. देखो ये जो सारी एंट्रीज हैं A1 प्लस अल्फा 1, तो A1 के साथ इस डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन. समझ रहे हो क्या? स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट कर लिया है ना, अलॉन्ग विथ A1 अलॉन्ग विथ अल्फा 1, लाइकवाइज अलॉन्ग विथ A1 के साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट, अल्फा 1 के साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट, लाइकवाइज A2 के साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट, फिर हाँ अल्फा 2 के साथ में 2/2 का डिटर्मिनेंट, लाइकवाइज A3 के साथ में 2/2 का डिटर्मिनेंट और अल्फा 3 के साथ में 2/2 का डिटर्मिनेंट. इन तीनों को एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया आपने, अलग अलग कर दिया, और इन तीनों को दूसरे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया. दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर. यही तो किया हमने. पॉइंट इज दैट रिमेन्स सेम एंड दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. और अगर हम रो कॉलम वाइज लिख सकते हैं तो रो वाइज भी लिख सकते हैं क्योंकि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंजेबल. ये समझ में आएगा क्या किया बोल रहे हैं, है ना? तो जस्ट डेरिवेशन वाली बात कही है मैंने आपको. कॉलम नंबर 1 का एक्सपेंशन लिखा और फिर सेपरेट कर दिया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के डिटर्मिनेंट को सेपरेट किया और A1, A2, A3 के डिटर्मिनेंट को सेपरेट किया और उसको इस ढंग से एक्सप्रेस कर दिया.
यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट. अब यहाँ पे पॉइंट ये है, सुनिएगा ध्यान से, ये तो ठीक है, दैट इज द डेरिवेशन पार्ट देयर. फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स थे, मान लीजिए, बोर्ड पे देख रहे हैं, चलिए फर्स्ट नोट डाउन दिस, देन आई विल एक्सप्लेन दैट, ज्यादा बेहतर होगा. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको फिर ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम नंबर 2 आर गिवन एज b1 plus beta 1, b2 plus beta 2, b3 plus beta 3. कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स भी समेशन ऑफ द टू नंबर्स हैं. कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स थे वो समेशन ऑफ द टू नंबर्स थे, उनको हमने स्प्लिट करके लिखा. अभी कॉलम नंबर 2 के भी जो एलिमेंट्स हैं दोज आर अगेन समेशन ऑफ द टू नंबर्स. इन दैट केस व्हाट विल हैपन हियर, ये मैंने कॉलम नंबर 1 के लिए लिखा स्प्लिट करते हुए, बट कॉलम नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो तो एज इट इज है. दैट मीन्स राइट. और दोस्तों दिस डिटर्मिनेंट अगेन, इसको फिर आप स्प्लिट कर सकते हो दो डिटर्मिनेंट के टर्म में. एज ए समेशन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स अगेन यू कैन स्प्लिट लाइक दिस, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 प्लस, समझ लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, a1 a2 a3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, c1 c2 c3, राइट. एज वेल एज दिस सेकेंड डिटर्मिनेंट जिसमें भी कॉलम नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है दोज आर द समेशन, दोज आर द सम ऑफ द टू नंबर्स, that can again be written as like this. पॉइंट इज द डिटर्मिनेंट, यहाँ पर कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स जो हैं दोज आर समेशन ऑफ द टू नंबर्स, कॉलम नंबर 2 के भी जो एलिमेंट्स हैं दोज आर द समेशन ऑफ द टू नंबर्स. इनको अगर ओवरऑल स्प्लिट करने की बात करें तो दोज आर गोइंग टू बी देयर इन टर्म्स ऑफ 4 डिटर्मिनेंट्स, राइट. और एक सवाल मेरा आपसे, अगर मान लीजिए, मैं समझ रहा हूं आपकी बेचैनी, लेकिन फिर भी if it is like this, then what will happen? Then how many determinants would be there जिसमें आप इसको स्प्लिट कर पाओगे अलग अलग. बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, and we have seen it using the इसका हमने सॉल्यूशन देखा है कि क्यों हो जाता है. 4 6 8 4 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 4 से तो ज़्यादा ही हैं. Yes, it is there in terms of 8 determinants. The reason is 8 इसलिए है कि देखो 4 तो ये ऑलरेडी हैं, और यहाँ पे ये कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट सब जगह रहेंगे. इनको अगेन आप दो डिटर्मिनेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, समेशन ऑफ दैट. तो 2 + 2 + 2 + 2, इन दैट केस इट्स नॉट 6, इट्स 8 डिटर्मिनेंट्स में आप उसको लिख पाओगे. हम नहीं लिखना चाहेंगे, वो बात अलग है, लेकिन होता क्या है तो ये तो पता होना चाहिए ना. ठीक है. बिल्कुल नहीं कर सकते. ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्ली एडिशन वैसे बिल्कुल नहीं होता जैसा मैट्रिक्स में होता है. मैट्रिक्स में तो ठीक है, 2 मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, आपने ऐड कर दिया, ठीक है, फाइन, एलिमेंट्स आर गेटिंग एडेड देयर. आप इसको कह सकते हो कि सर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज वन ऑफ द मैट्रिक्स A मैट्रिक्स. अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड गामा 1 गामा 2 गामा 3 इज द सेकंड मैट्रिक्स, एंड आपने दोनों को ऐड किया. बट ये टर्म, ये बात आप डिटर्मिनेंट में बिल्कुल नहीं कह सकते.
ये बात आप बिल्कुल नहीं कह सकते। इसको लिखना है तो इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन 8 डिटर्मिनेंट्स। और एक छोटी सी बात का और जवाब दे देना आप मुझे, छोटी सी बात है, हाँ वो तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन summer vacations are going on and we want to maximize that time. अगर मान लीजिए ऐसा डिटर्मिनेंट है, देन नहीं पता है तो जब तक पता नहीं लगेगा जा नहीं पाओगे आप। इस डिटर्मिनेंट को अगर आपको स्प्लिट करना होगा तो कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर द सम ऑफ द 3 एलिमेंट्स, तो इसको आप यू कैन एक्सप्रेस एज अ समेशन ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स, दैट इज द ओनली पॉइंट। एंड इफ इट इज ऑफ समेशन ऑफ n एलिमेंट्स इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ n डिटर्मिनेंट्स देयर। और जो बात यहाँ पे हम कॉलम वाइज कह रहे हैं वो रो वाइज भी कह सकते हैं, राइट?